کیفے ٹائم لندن کی جانب سے یہ اس مشاعرے کا انعقاد جو ہے وہ کیا گیا ہے، اور خاص طور پر سب سے پہلے میں محترم عزت مآب جناب لارڈ نذیر احمد صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آج ہمارے لیے ایک خاص اہتمام کیا اس مشاعرے کا، اور ہمیشہ ہی محبت کرتے ہیں اور کمیونٹی کو اکٹھا کرنے کے حوالے سے لارڈ نذیر صاحب کی جو خدمات ہیں ان کی مثال جو ہے وہ کہیں نہیں ملتی. نہایت ہی معزز اور محترم بھائیوں، دوستوں، بہنوں، حضرات، آئی ہیو اے گریٹ آنر اینڈ پریولیج ٹو ویلکم. سب سے پہلے تو فرد عباس شاہ صاحب کو میں ویلکم کرتا ہوں ہاؤس آف لارڈز میں. اٹس اے گریٹ آنر اینڈ پلیجر ٹو انوائٹ یو ہیئر اینڈ ٹو ویلکم یو، کیونکہ یہاں پہ بہت سارے شاعر اور فلاسفرز اور دانشور لوگ یہاں پہ تشریف لاتے ہیں، رائٹرز یہاں پہ تشریف لاتے ہیں، لیکن جس طریقے سے لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں پورے برطانیہ میں، یہ ایک مثال ہے. اور دس از ایویڈنس کہ یہاں پہ جتنے لوگ یہاں پہ دور دور سے تشریف لائے ہیں، لوگوں کو محبت ہے شاعروں کے ساتھ اور اس جو خوبصورت کلام ہے اس کے ساتھ. اور یہ کوئی نئی ٹریڈیشن نہیں ہے، ہزاروں سال پہلے بھی اگر آپ دیکھیں تو ایون میں یعنی اتنا زیادہ دور نہیں جانا چاہتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو عربیوں کی محفلیں ہوتی تھی مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں، جہاں بھی، تو وہ مشاعرہ ایز مشاعرہ یہاں پہ ہاؤس آف لارڈز والا تو شاید اس طرح کا نہیں تھا، لیکن شعر وہ ضرور پڑھتے تھے، اور شعر ان کے جو ہے کمپٹیشنز ہوتی تھی، محفلیں ہوتی تھی. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب قرآن نازل کیا تو سارے شعر جو ہیں وہ ایک سائڈ پہ رہ گئے. قرآن جو ہے وہ اس کی خوبصورتی اور اس کا انداز جو ہے وہ ایک الگ جو ہے وہ پھر عربیوں نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا. لیکن کیونکہ اردو زبان اتنی پیاری اور میٹھی زبان ہے، اور ساتھ ساتھ میں پنجابی بھی کہوں گا کہ اور میری جو پہاڑی زبان ہے، کیونکہ میاں محمد بخش صاحب جو ہے نا وہ ہماری پہاڑی زبان میں جو ہے ان کی کتنی خوبصورت شاعری ہے، تو میں یہاں پہ سننے کے لیے آیا ہوں. اور میری جو پلیزنٹ ڈیوٹی یہ تھی کہ میں آپ سب کو ویلکم کروں اور شاہ صاحب آپ کو ویلکم کروں. میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ شاعر ہونا یا اچھا شاعر ہونا بہت اچھی بات ہے، لیکن اچھا انسان ہونا بہت بڑی بات ہے. اور بات یہ ہے کہ شہرت پا لینا بڑی اچھی بات ہے، لیکن شہرت کے آسمان پہ پہنچ کے اپنی عاجزی کی زمین کو نہ چھوڑنا بہت بڑی بات ہے. اور فٹ پاتھ پہ سوئے ہوئے کچھ مزدوروں کو دیکھ کے اپنے دل میں غم محسوس کرنا بہت اچھی بات ہے، لیکن اپنا مکان بیچ کے ان مزدوروں کے لیے جھونپڑیاں بنا دینا بہت بڑی بات ہے. ہمارے درمیان ایسے ہی آج ایک دوست موجود ہے، اور بلکہ اس سے بھی بڑھ کے میں یہ کہوں گا کہ کسی انسان کی تلخ باتوں کو سن کے خاموش رہنا بہت اچھی بات ہے، لیکن اس وقت خاموش رہنا کہ جب آپ بلیک بیلٹ 7 ڈان ہوں اور مارشل آرٹس کے انسٹرکٹر ہوں، اس وقت بھی اپنی عاجزی کو نہ چھوڑنا بہت بڑی بات ہے. آج ہمارے درمیان ایسے ہی ایک عظیم شاہکار شاعر موجود ہیں، فرحت عباس شاہ صاحب، جو کہ 68 کتابوں کے مصنف ہیں. میں آپ کو صرف جو میلی رہ میں شے ہم اثر ہو گئی، جو میلی رہ میں شے ہم اثر ہو گئی، ساتھ وہ بھی میرے ہم سفر ہو گئی، ساتھ وہ بھی میرے ہم سفر ہو گئی، رہ کے اپنے وطن میں ہوئے بے وطن، رہ کے اپنے وطن میں ہوئے بے وطن،
यूं हमारी खुशी नौहगर हो गई, यूं हमारी खुशी नौहगर हो गई। जानो दिल से वो अब चाहते हैं मुझे, जानो दिल से वो अब चाहते हैं मुझे। गोया मेहनत मेरी बारवर हो गई, गोया मेहनत मेरी बावर हो गई। और मुलाजा हो कि शब की तन्हाइयाँ जब मेरे साथ थीं, शब की तन्हाइयाँ जब मेरे साथ थीं, मैंने जाना नहीं कब सहर हो गई। शब की तन्हाइयाँ जब मेरे साथ थीं, मैंने जाना नहीं कब सहर हो गई। मेरी दुनिया इधर से उधर हो गई, जिंदगी इस तरह दर बदर हो गई। और ये देखिए कि मक्ता है, घा गई किसकी नजरें जमी की ऐशाब, खा गई किसकी नजरें जमी को ऐशाब। ये जमी अब इधर से उधर हो गई, ये जमी अब इधर से उधर हो गई। इसमें भी कुछ अशार हालात हाजरा पर थे। अर्ज किया कि खान वड्डा या कोई पीर होवे, वाह वाह, खान वड्डा या कोई पीर होवे, शर्त ये वे के रसा गिर होवे। बात आ रही है? खान वड्डा या कोई पीर होवे, शर्त ये वे के रसा गिर होवे, ते चढ़दे सूरज नूं जो करे पूजा, चढ़दे सूरज नूं जो करे पूजा, पकाओ जिसदा सदा ही ज़मीर होवे, ते कर्जा लेके बैंक तू खा जावे, कर्जा लेके बैंक तू खा जावे, रातों रात जेड़ा अमीर होवे। अर्ज कीता कि लुटे मुल्क नूं दोई दोई हथी, लुटे मुल्क नूं दोई दोई हथी, जिवें बाबे दी जगीर होवे, ते झूठ बोले ना करे काम कोई, झूठ बोले ना करे काम कोई, पर लच्छेदार जी दी तकरीर होवे, ते कुर्सी लई जो बदल जमात लवे, कुर्सी लई जो बदल जमात लवे, ते इस वास्ते चाहे जिन्ना ही हकीर होवे, ते मौका मिले तो घुट भी ला लवे, मौका मिले ते घुट भी ला लवे, ते किसे जुल्फ दा भी असीर होवे, ते असल नकल दी करे पहचान ना। डॉक्टर साहब, असल नकल दी करे पहचान नहीं, ते हर एक नालों शकर शीर होवे, ते मक्तार जाए फिर की होना चाहिए। ये खूबियां जिदे विच होण राजा, बंदा वही फिर वजीर हो। बरतानिया में जो अदबी महफिलें सजाते हैं वो बड़ा ही पाकिस्तानी कौम के लिए सरमाया है। मैं एक लॉर्ड साहब छोटी सी एक मिसाल दे दूं कि मैं जिस वक्त काउंसलर था ब्लैकबर्न में, आई वॉज फर्स्ट पाकिस्तानी काउंसलर इन ब्लैकबर्न, इट वॉज 91। तो वहाँ पर कोई अदबी प्रोग्राम नहीं होता था, तो वहाँ मेरे इंडियन मुसलमान भाई भी पाकिस्तानी भी थे। तो मैं एक दफ़ा बैठे तो मैंने कहा यार इतनी बड़ी कम्युनिटी है, 30,000 मुसलमान यहाँ आबाद हैं, तो बेशुमार बाकी प्रोग्राम होते हैं, तो क्यों ना कोई ऐसे भी प्रोग्राम हो जो हमारी आने वाली नस्लें उनको पता चले कि हमारा अदब क्या है, हमारा मुल्क के जो शायर हैं जिनमें पाकिस्तान बनाने के लिए बड़ी कंट्रीब्यूशन है। तो बहरहाल वहाँ पर एक हमने ऑर्गेनाइजेशन लॉर्ड साहब बनाई, इंस्टीट्यूट ऑफ उर्दू कल्चर एंड लिटरेचर, और उसके इंडियन मुसलमान भाई भी और हमारे पाकिस्तानी भी मिलकर उसके ऑफिस बेयर बने। तो मैंने कहा कि मैं इंशाअल्लाह ताला जो भी आप मुशायरा करेंगे मैं उसकी फंडिंग काउंसिल से करूँगा, और अप टू जब तक मैं काउंसलर रहा हूँ मैं उसकी फंडिंग जो है ना ब्लैकबर्न बोरो काउंसिल से करवाता हूँ। तन्हा खड़ा हूँ शहर में तन्हाइयों के बीच, जैसे खिला हो फूल कोई खाइयों के बीच।
दबते थे दश्ते दर्द में पेड़ की तरह, तन्हा खड़ा हूँ आज भी तन्हाइयों के बीच। पिछला पहर है रात का, पिछला पहर है रात का, तारे भी सो गए, मैं चल रहा हूँ आज भी परछाइयों के मुकर्रर। पिछला पहर है रात का, तारे भी सो गए, मैं चल रहा हूँ आज भी परछाइयों के बीच। मुझको गुनाहों जुल्म की इस भीड़ से निकाल, मैं फंस गया हूँ शहर के बुराइयों के बीच। किस जुर्म की सजा में मुकद्दर ने ए खुदा, किस जुर्म की सजा में मुकद्दर ने ए खुदा, फिर ला खड़ा किया है मुझे रुसवाइयों के बीच। देखो सुहेल दर्द का सुकरात हो गया, देखो सुहेल दर्द का सुकरात हो गया, कुछ ऐसे गिर गया है वो शेदाइयों के बीच। शाह साहब को बड़ी तो फाड़ला ही, मैंने कहा चलो इधर सुनाते हैं। उनसे जब राब्ता नहीं रहता, उनसे जब राब्ता नहीं रहता, होश हमको जरा नहीं रहता। वक्त पर इस कदर गुमान न कर, वक्त पर इस कदर गुमान न कर, वक्त तो एक सा नहीं रहता। उनके हमरा चल के देख जरा, उनके हमरा चल के देख जरा, फासिला फासिला नहीं रहता। जब रवैये समझ में आ जाएं, जब रवैये समझ में आ जाएं, फिर किसी से गिला जब रवैये समझ में आ जाए, किसी से गिला नहीं। ओस पड़ती है जब भी जज्बों पर, ओस पड़ती है जब भी जज्बों पर, धूप का सिलसिला नहीं रहता। ओस पड़ती है जब भी जज्बों पर, धूप का सिलसिला नहीं रहता। मक्तार ज़ैना, जुल्म बढ़ जाए जिस कदर भी सुहे, जुल्म बढ़ जाए जिस कदर भी सुहे, ये भी सच है सदा नहीं रहता। किसी शायर से पूछा कि तू जन्नत में जाएगा या दोज़ख में, उसने कहा यार जहाँ दाद ज्यादा मिलेगी। तो दोस्तों शायर हमेशा दाद ही गिरेगा। अच्छा, अब शायर की घरेलू जिंदगी जो है वो कैसी है? मैं भी 12 साल से शायरी कर रहा हूँ। पहले तो अच्छा भला आदमी था, बीवी कहती थी अच्छा भला चंगा भला बंदा से तो हो की गया। बहरहाल अब वो कहती है, अभी मेरी वाइफ कह रही है, जानती हूँ तन्हा बैठ के क्या क्या लिखते रहते हो। क्योंकि शायद बेचारा ने कलियां पे आके मुस्कुस करता रहता है, पता नहीं। बहरहाल जानती हूँ तन्हा बैठ के क्या क्या लिखते रहते हो, गम को तान लेते हो और कभी मुस्कुराते हो। घर में मेरे बैठ के, घर में मेरे बैठ के तुम हिजर में किसी और के, घर में मेरे बैठ के हिजर में किसी और के, हिजर में किसी और के गजलें लिखकर महफिल में तरन्नुम से सुनाते। घर में मेरे बैठ के तुम हिजर में किसी और के गजलें लिखकर महफिल में तरन्नुम से सुनाते हो, और घंटों फोन पे बातें करके जो मैं पूछूं कौन है, घंटों फोन पे बातें करके जो मैं पूछूं कौन है, रॉन्ग नंबर था क्या कि जरा भी ना शर्माते। सच्चा था बंदा दे, और सच कह रहे हैं लोग, झूठ बोलते सच्ची कहते हैं। घंटों फोन पे बातें करके जो मैं पूछूं कौन है, रॉन्ग नंबर था क्या कि जरा भी ना शर्माते हो, और अब जो आया फोन किसी का ऐसी खरी सुनाऊंगी। अब जो आया फोन किसी का ऐसी खरी सुनाऊंगी, उस शादी मुझसे इश्क किसी से उल्लू मुझे बनाते हो।
किसी का ऐसे ही खरी सुनाऊंगी, शादी मुझसे इश्क किसी से, उल्लू मुझे बनाते हो, किसी को बाजी किसी को आंटी, किसी का अंकल बन के तुम, किसी को बाजी किसी को आंटी, किसी का अंकल बन के तुम शारात का पल में ही रिश्तेदार बन जाते हो, और बच्चे देकर 6 जोली में मुझको बूढ़ी कहते हो। हमेशा शायर की मशूका पड़ोसन होती है, घर वाली नहीं होती। बच्चे देकर 6 जोली में मुझको बूढ़ी कहती हो, शर्म करो कि 10 साल अपनी उम्र कम बताते हो। लगता है याद रखो अमजद मिर्जा, दरवाजा अपना खोलूंगी। याद रखो अमजद मिर्जा, दरवाजा अपना खोलूंगी, मुशायरों से आधी रात वापस घर जब आते हैं। जानती हूँ तन्हा बैठ के क्या पहले से मालूम था ये तो सारी दुनिया को, दूर फिजा में उड़ने वाले तायर होते हैं, लेकिन अब मालूम हुआ है साइंसदानों को, अच्छी सूरत वाले अक्सर शायर होते हैं। ये शेर तो आपने और चूंकि मिर्जा अमजद साहब ने कुछ हल्के फुल्के अंदाज में बात की, तो अगर इजाज़त हो शाह साहब की और आपकी, तो कुछ कतार आप भी, एक कथा है कि आप भी बेगम की बातों से परेशान हैं अगर, एक है तरकीब मेरे पास इस जंजाल की, आज जाके आप भी बेगम से बस इतना कहें, आप जब खामोश हो लगती है 16 साल में। अमजद साहब ने कहा कि शायरों का दिल करता है, तो उससे मेरे चंद एक अशार कि रहिए अब ऐसी जगह चलकर जहाँ कोई न हो, बिल कोई आता न हो, मालक मकान कोई न हो, शेर सुनने के लिए बेताब हो महफिल बड़ी, और बस मेरे सिवा शायर वहाँ कोई न हो। शेर सुनने के लिए बेताब हो महफिल बड़ी, और बस मेरे सिवा शायर वहाँ कोई न हो। क्या बात है। कुर्सियों से बांध के रखे हो सारे सामईन, उठ के जाने का वहाँ वहमो गुमान, और दाद वो देते रहे वक्फे से मुझको बार बार, चाहे शेरों की तरफ उनका ध्यान शहरी कैसा जहाँ, आओ मिलकर हम बनाएं शहरी कैसा जहाँ, नफरतों का दूर तक नामो निशान कोई नहीं, जगह चलकर जहाँ कोई ना हो, बिल कोई आता ना हो, मकान कोई ना हो। 2 गजलें हैं अगर इजाजत हो। अर्ज किया है कुछ दिल को है आज़ार जरा और तरह के, कुछ दिल को है आज़ार जरा और तरह के, कुछ वो भी है गमखार जरा कुछ हुस्ने मसीहा भी जमाने से अलग है, कुछ हुस्ने मसीहा भी जमाने से अलग है, कुछ हम भी हैं बीमार जरा कुछ हम भी हैं बीमार बहुत अच्छा शेर। और यूं ख्वाब न बेचो कि यहाँ शहर जफा में, यूं ख्वाब न बेचो कि यहाँ शहर जफा में, बैठे हैं खरीदार जरा हो, बैठे हैं खरीदार क्या बात, जरा हो तरह के, और इंसाफ ये कहता है कि कातिल को सजा हो, इंसाफ ये कहता है कि कातिल को सजा हो, मुंसिफ है समझदार मुंसिफ है समझदार जरा और तरह की, और महशर में हमें बख्श दिया उसने ये कहकर, महशर में हमें बख्श दिया उसने ये कहकर, होते हैं गुनहगार और सुनते हैं मुबारक को कोई चोट लगी है, सुनते हैं मुबारक को कोई चोट लगी है, कहता है वो अशार जरा बस जला था अभी
बस अभी बुझ गया, बस चला था अभी बस अभी बुझ गया, ख्वाब की उम्र कितनी हुई दोस्तों, बस जला था अभी बस अभी बुझ गया, ख्वाब की उम्र कितनी हुई दोस्तों। जिंदगी ख्वाब है, जिंदगी ख्वाब है, ख्वाब देखो मगर भूलना मत, ख्वाब देखो मगर भूलना मत, हमें लौटना है अभी एक सच की तरफ। ख्वाब देखो मगर भूलना मत, हमें लौटना है अभी एक सच की तरफ, याद रखना कि बस जागना है अभी एक जरा देर में। मेरी एक बहुत तवील नज़्म है, उसका उन्वान है कोई कैसे अहले वफा करे। अगर इजाज़त हो तो उसके आखिरी 2 हिस्से। जी जी। अच्छा। मेरे इख्तियार में कुछ नहीं, मेरे इख्तियार में कुछ नहीं, मुझे अपने कल की खबर नहीं, मुझे अपने कल की खबर नहीं कि ये पेश लफ्ज़ हो बाप हो, मेरी अपनी हस्ती है राज में, ये वजूद हो कि खराब हो। भले नफरतों के भंवर मिले, भले सुर्ख रंगे गुलाब हो, भले किस्सा हाय मलाल हो, भले सुख पे लिखी किताब हो। मेरी शाख शाख हो बेसमर, मेरा बर्ग बर्ग गुलाब हो, मेरी सारी उम्र अंधेर हो, मेरा लम्हा लम्हा शहाब हो। भले दस्तरस हो नजूम पर, भले ख्वाब भी मेरा ख्वाब हो। मिले सारी उम्र की गर्दिशें, कोई मुंतजर सरे बाप हो, मेरा रूप रश के बहार हो, कि मिसाल रंगे हबाब हो। बाप हो भले ढांपती न हो घर की छत, भले आसमां भी हिजाब हो, मेरे इख्तियार में कुछ नहीं, मेरे इख्तियार में कुछ नहीं। मैं दुआ करूं तो असर न हो, मैं दुआ करूं तो असर न हो, भले झोली भर के अता करे, मेरी राह को कौन सी मुंतखब, मुझे किस सफ़र की सज़ा करे। मेरी राह को कौन सी मुंतखब, मुझे किस सफ़र की सज़ा करे, जो न हो मुआहिदा रूह का, मेरा जिस्म जान को रिहा करे। जो ना हो मुआहिदा रूह का, मेरा जिस्म जान को रिहा करे, मुझे क्या भरोसा है जिंदगी, भले अगली सांस जफा करे, मेरा अगला लम्हा ही क्या खबर मुझे रंग बू से जुदा करे। तो नमाज इश्क के वास्ते, तो नमाज इश्क के वास्ते कोई इसने हक को कज़ा करे, ये मोहब्बतों का उधार फिर कोई डूबते में अदा करे। मेरे हम नफस जरा सोच तो, कोई कैसे दे। हमें भी यूं ही गुजरना पसंद है और फिर, हमें भी यूं ही गुजरना पसंद है और फिर तुम्हारा शहर मुसाफिर शनास भी कम है। वाह 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 वाह। आधे आधे जो भी किए थे सारे काम फजूल गए, आधे आधे जो भी किए थे सारे काम फजूल गए। सुबह हुई तो याद आए तुम, शाम हुई तो भूल गए। और बारिश और तुम्हारा गम मशरूत हुआ है मुद्दत से, बारिश और तुम्हारा गम मशरूत हुआ है मुद्दत से। दूर कहीं पर बादल बरसे, आंख में आंसू झूल गए। और जिन सड़कों पर खुशी खुशी हम घंटों तेरे साथ चले, तेरे बाद हम उन सड़कों से सारी उम्र मलूल गए। और ये शेर देखिए कि याद है उस दिन दोनों मिलकर कितनी देर हंसे थे जब, याद है उस दिन दोनों मिलकर कितनी देर हंसे थे जब, तूने झूठी तारीफें की हम दानिस्ता फूल गए। दोबारा जी। याद है उस दिन दोनों मिलकर कितनी देर हंसे थे जब, तूने झूठी तारीफें की हम दानिस्ता फूल गए। और शेर देखिए कि एक और गज़ल, 2 शेर याद आ रहे हैं कि इसी से जान गया मैं कि वक्त ढलने लगे, इसी से जान गया मैं कि वक्त ढलने लगे। मैं थक के छाँव में बैठा तो पेड़ चलने लगे। मैं दे रहा था सहारे तो एक हजूम में था,
जो गिर पड़ा तो सभी रास्ता बदलने लगे। वाह 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 वाह, दोबारा पढ़िए जी, दोबारा पढ़िए। मैं दे रहा था सहारे तो एक हजूम में था, जो गिर पड़ा तो सभी रास्ता बदलने लगे। और अच्छा जी, बदल गए मेरे मौसम तो यार अब आए, बदल गए मेरे मौसम तो यार अब आए, यही होता है ना जी। गमों ने चाट लिया गम गुसार अब आए। और ये वक्त इस तरह रोने का तो नहीं, लेकिन मैं क्या करूं कि मेरे सोगवार अब आए। शाम के बाद की हाँ, वो मैं वही सुना देता हूँ ना। तूने देखा है कभी एक नज़र, शाम के बाद। ये इस किताब जो है, ये मैं मार्केटिंग पढ़ाता भी हूँ, और वहाँ जब बच्चे बड़े मॉडर्न हैं और वो शायर के बारे में उनका वही ख्याल है जो हमारे अमजद मिर्ज़ा साहब का है ख्याल तो बिल्कुल ऐन यही समझते हैं कि ये ऐसे ही होते हैं। तो मैंने बताया कि गालिब ने उस वक्त एडवर्टाइजिंग के असूल बताए थे जब किसी को पता ही नहीं था। उसने कहा था कि जब किसी शायर का कलाम गली में फ़कीर और कोठे पे गाने वाली गाती है तो फिर उस शायर को दुनिया तक पहुंचने से रोक कोई नहीं सकता। तो ये एडवर्टाइजिंग थी कि उसका जिंगल बना के उसका जो इश्तिहार, जब कैसे आज हमारे यहाँ वो गलियों में म्यूज़िक बजता है, लेकिन ये वाह। तो मैंने उन्हें कहा कि मेरी एक गज़ल ऐसी है जिसे मैंने बाकायदा ब्रांड बना दिया है, और वो ये गज़ल है। इसकी किताब को 200 से ज़्यादा एडिशन इसके, और नौजवानों ने सीने से लगाया। और जब ये ज़िया-उल हक साहब के दौर में थी तो लोगों ने इसको इस तरह ओन किया जैसे वाकई उनके दिल की बात है। तो मेरे भी FA के दौर की ये गज़ल है, फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में था। तो शायरी के लिए ना उम्र की कोई है कि बड़ा बंदा पढ़ लिख के शेर कहेगा तो बड़ा होगा, ना उम्र का है। तूने देखा है कभी एक नज़र शाम के बाद, कितने चुपचाप से लगते हैं शजर शाम के बाद, और इतने चुपचाप के रस्ते भी रहेंगे ला इल्म, छोड़ जाएंगे किसी रोज नगर शाम के बाद। रात बीती तो गिने आबले और फिर सोचा कौन था बायसे आगाज़े सफ़र शाम के बाद। मैंने ऐसे ही गुनाह तेरी जुदाई में किए, जैसे तूफान में कोई छोड़ दे घर शाम के बाद। और शाम से मैंने जल्दी ना नहीं मैंने ऐसे ही गुनाह तेरी जुदाई में किए, जैसे तूफान में कोई छोड़ दे घर शाम के बाद। और शाम से पहले वो मस्त अपनी उड़ानों में रहा। राना साहब आई तुसी नहीं शेर सुनाया, मैंने बड़ा अफसोस है, तुहानू ही है, मैं थोड़े दुख च बराबर दशा है ना। जहाँ शाम से पहले वो मस्त अपनी उड़ानों में रहा, जिसके हाथों में थे टूटे हुए पर शाम के बाद। और शेर देखिए कि शाह हो कोई गदा हो या वली हो सबका, फिक्र के बोझ से झुक जाता है सर शाम के बाद। और शाह हो कोई गदा हो या वली हो सबका, फिक्र के बोझ से झुक जाता है सर शाम के बाद। और घेर लेते हैं मुझे रस्ते तेरी यादों के, घेर लेते हैं मुझे रस्ते तेरी यादों के, जब भी करता हूँ तेरे बाद सफ़र शाम के बाद। लौट आए न किसी रोज़ वो आवारा मिजाज, खोल रखते हैं इसी आस पे दर शाम के बाद। और लाड साहब की नज़र एक शेर कर रहा हूँ, और इनको मैं ये शेर दाग रहा हूँ कि ये इनको अच्छा लगेगा, मुझे यकीन है। और शायद ये किसी इस तरह के लिए फिर ये कभी पढ़ भी दें, लेकिन इनको याद भी नहीं होगा, ये भी एक मसला है ना, कि जो ये इस तरह की बातें करते रहते हैं असल में ये शाहों के ख़िलाफ़। तो ये शेर है जी कि तू है सूरज तुझे मालूम कहाँ रात का दुख, सूरज जब आएगा फिर रात नहीं रहेगी, है ना। तू है सूरज तुझे मालूम कहाँ रात का दुख, तू किसी रोज मेरे घर में उतर शाम के
تو ہے سورج تجھے معلوم کہاں رات کا دکھ، تو کسی روز میرے گھر میں اتر شام کے بعد، اور تو نے دیکھا ہے کبھی ایک نظر شام کے بعد، کتنے چپ چاپ سے لگتے ہیں شجر شام کے بعد. واہ واہ واہ. تو میں بھاویں سوکھا تے بھاویں تنگ جاساں، انگلینڈوں نس کے جھنگ جاساں، بھاویں سوکھا شاعر ہے نا جی، نہیں دل لگ رہے ہن کی کراں. ہاں جی میرا تو پکڈلی دل نہیں لگیا، مجبوری میری ہے جی. تے بھاویں سوکھا تے بھاویں تنگ جاساں، انگلینڈوں نس کے جھنگ جاساں، اور میں شاعر ہاں کوئی فوجی نہیں، میں شاعر ہاں کوئی فوجی نہیں، میں لڑ لڑ تے نل جنگ جاساں، کہ میں شاعر ہاں کوئی فوجی نہیں، میں لڑ لڑ تے نل جنگ جاساں، اور ہک بک کے لو بھاویں پنڈے وچ، دو گٹھ مٹی تا رنگ جاساں. ایک کیفیت ہے، رات بھی ایسی کہ ٹھہری ہوئی رات، درد بھی آ کے نہ جانے درد بھی آ کے نہ جانے والا. اور شعر دیکھیے کہ ایک میرا یار ہوا کرتا تھا، کوئی بھی ہو سکتا ہے کیانی صاحب، تسی تو سمجھ گئے ہو نا ذرا. ایک میرا یار ہوا کرتا تھا، کاغذی پھول کھلانے والا، کاغذی پھول کھلانے والا. اور آخری شعر ہے کہ اب زمانہ ہی نہیں ہے فرحت. آپ کے شعر کو کمپلیمنٹ کر رہا جو آپ نے کہا آخر پہ، اب زمانہ ہی نہیں ہے فرحت، دیپ سے دیپ جلانے والا، دیپ سے دیپ جلانے والا. اوکھے سوکھے راہ لے لے کے، پیڑاں ہیٹھ پناہ لے لے کے، اوکھے سوکھے راہ لے لے کے، پیڑاں ہیٹھ پناہ لے لے کے، اوکھے سوکھے. کیا انسان لبھدا پھراں عدالت کوئی، کیا بات کیا بات. لبھدا پھراں عدالت کوئی، لبھدا پھراں عدالت کوئی، دل دے زخم گوا لے لے کے، دل دے زخم گوا لے لے کے، لبھدا پھراں عدالت کوئی،
ਦਿਲ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਗਵਾ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਂ ਤੇ ਰੋਵਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਂ ਤੇ ਰੋਵਾਂ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਾਲੇ। क्या बात है, बहुत खूब। ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ, ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਲਾਈ ਤਾਨ। ਉਹ ਸੁਰੀਲੇ ਆਦਮੀ ਨੇ। क्या बात है। ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਂ ਤੇ ਰੋਵਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਂ ਤੇ ਰੋਵਾਂ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਾਲੇ। ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਮੇਰਾ, ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਮੇਰਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਹਾਲ ਹੈ। वाह 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 वाह, दोबारा पढ़े जी। वाह 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 वाह। ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਮੇਰਾ, सुभान अल्लाह। ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਹਾਲ ਲੈ ਕੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਅਦਾਲਤ ਵਾਲਾ ਸ਼ੇਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਨਾ ਲਾਰਡ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਸੈਮੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੈ ਨਾ। ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਾਂ, ਯਾਨੀ ਜਿਸ ਵਕਤ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਕਿਸੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਸ਼ਾਇਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਾਂ ਅਦਾਲਤ ਕੋਈ, ਦਿਲ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਗਵਾ ਲੈ ਲੈ ਕੇ। ਦਿਲ ਦੇ ਜ਼ਖਮ। ਆਖਰੀ ਸ਼ੇਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਰਤ ਸ਼ਾਹ ਅਸੀਂ ਓਣਕ ਮਰਨਾ, ਦਰਦਾਂ ਦੇ ਨਲ ਫਾਲੇ। वाह 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 वाह। ਦਰਦਾਂ दोबारा पढ़ो शाह जी। वाह वाह वाह, क्या बात। ਫਰਹਤ ਸ਼ਾਹ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮਰਨਾ, ਫਰਹਤ ਸ਼ਾਹ ਅਸੀਂ ਓੜਕ ਮਰਨਾ, ਦਰਦਾਂ ਦੇ ਨਲ ਫਾਲੇ ਲੈ ਕੇ। ਪੀੜਾਂ ਹੇਠ ਪਨਾ ਲੈ ਲੈ ਕੇ, ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਹਕ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਬੜਾ ਅਨਯੂਜੂਅਲ ਹੈ, ਬੜਾ ਅਨਯੂਜੂਅਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗੈਸਟ ਆਵੇ। ਨਾਰਮਲੀ ਜਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਲਾਸਟ ਉਹ ਆਪਣੇ ਡਿਪਟੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਬਿਸਕਟ ਉਹ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਹੁਮਾ, लेकिन मैं रियली अज फरत अब्बास शाह साहब पहले मेरी जिंदगी का पूरा मुशायरा मैं सुनिया है और पहला मुशायरा मैं इंजॉय इतना किया है। मिर्जा साहब तुहाडा भी अमजद मिर्जा साहब तुहाडे तो लैके सारे जितने भी शायर इत्थे तशरीफ रखने सन, और मैं चाहना कि मैं एक छोटी जी एक गिफ्ट पेश करा। ਤੇ ਭਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਬਿਸਕਟ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਨੇ ਹਾਊਸ ਆਫ ਲਾਰਡਸ ਦੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਪੈਨ ਵੀ ਹਾਊਸ ਆਫ ਲਾਰਡਸ ਦਾ। ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਓ।